So in this lecture today, we are going to continue our chapter of hormonal coordination, जिसमें हम देखने वाले हैं adrenal gland के बारे में. Alright? So we all very nicely know the location of the adrenal gland. You know it is located above the kidneys. Kidney के superior surface पे anteriorly the adrenal glands are located. So if these are my two kidneys, which kidney is slightly lower than the and which kidney is slightly higher? We know that the right kidney is slightly lower and the left kidney is slightly higher. All right. So this is my right kidney. This is my left kidney. इनके ऊपर ये triangular shaped gland is the adrenal gland. This triangular shaped gland above the kidneys, superior border of the kidneys, you will get that also in the MCQs. Superior border of the kidneys, anterior surface of the kidneys, above the kidneys. So they are also called suprarenal glands. They are also called suprarenal glands. If kidneys are our renal organs, alright. So adrenal is also called suprarenal gland. Can you see? The shape is triangular. देखो, shape triangular है, kidney के ऊपर है, weight is around 5 grams. The shape is triangular, location is above the kidneys. Now because we have two kidneys, there are going to be two adrenal glands because एक kidney के ऊपर एक gland है. Alright, so the number is going to be 2 or 1 pair. One on the right side, one on the left side. एक right side में रहेगा, एक left side में रहेगा. So you have two adrenal glands, one above the right kidney and one above the left kidney. Now MCQ, the number of adrenal glands above the right kidney is 1. Number of adrenal glands in the human body are 2 because दोनों kidneys को consider कर रहे हैं. Number of adrenal glands in the right side of the body is 1. Alright, so total number is 2, they are in pair, but one is above the right kidney, one is above the left kidney. And these are located in the abdominal region. The weight is 5 grams, location we have seen, the shape is triangular and it is divided into two parts. It is divided into two parts. Outer part is the cortex and the inner is the medulla. जैसे हमने brain का देखा था. Brain is also divided into two parts, outer cortex, inner medulla. Similarly, adrenal gland, it is divided into two parts. बाहर का portion is the cortex, अंदर का portion is the medulla. Okay, outside portion is the cortex, inside portion is the medulla. This gland is dual in origin. What is making me write that it is dual in origin? We've seen from where the adrenal gland is located. We have seen all the glands ka origin. We have seen the origin of all the glands in the general when we have seen the glands of the body. So you tell me adrenal gland कहाँ से originate हुआ है? Adrenal gland कहाँ से originate हुआ है? It is dual in origin because the cortex and the medulla have a different origin. Cortex is originated from the mesoderm, whereas medulla is originated from the ectoderm. Cortex is originated from the mesoderm, medulla is originated from the ectoderm. Now because this ectoderm, this medulla is formed by the neural crest cells, ये sympathetic innervation में आगे काम आता है. Sympathetic system ऐसा आप लिखो यहाँ पे. What is sympathetic system? What is parasympathetic system? We will be seeing this in detail in the chapter of nervous coordination. But medulla, it is nervous in origin. ये ectoderm से neural ectodermal cells से आया है. Neural crest से originate हुआ है. यहाँ पे ectoderm है, ये हमने देखा है. Pituitary pineal दोनों ectodermal in origin है. उनके साथ ये medullary part ectoderm से originate हुआ है. It is sympathetic system. ये आगे जाके innervate करता है. It is an innervation. It is a branch of the sympathetic system. This we will speak in detail in the chapter of nervous coordination. You have to remember cortex जो है ये mesoderm से develop हुआ है और medulla जो है वो ectoderm से develop हुआ है. Cortex has developed from the mesoderm, whereas medulla has developed from the ectoderm. Therefore, we say that the adrenal gland, it is dual in origin. Therefore, we say that the adrenal gland is dual in origin.
All right. Now I have this triangular structure. I have this one adrenal gland. So it is divided into cortex and medulla. Cortex इसका ज़्यादा part है. Around 80% is cortex. And small part inside is medulla, which is 20%. So cortex ज़्यादा बड़ा है. अंदर का portion medulla is only about 20%. That you have to remember. Now this is the adrenal gland. So it has an outer coating which is called the capsule. ये बाहर से एक capsule रहेगा. Like you have the capsule surrounding almost all the organs, all the glands. So it will have a capsule. So this is the capsule what I am drawing. This is the capsule. All right. Then you have the cortex. So majority of the part is cortex, and then this is the inner medulla. This is the inner medulla. This is the medulla. So this majority of the portion becomes the cortex. ये हो जाएगा cortex. Now the cortex is divided into three parts. Cortex is divided into three zones. All right. अब ये three zones समझने के लिए, have you seen a pastry जिसमें 3 layers रहते हैं? Have you seen a pastry? You have the bottom layer of chocolate, then you have the middle layer of vanilla, you have the upper layer of strawberry. मुंह में पानी आ रहा है? All right. वैसे हम imagine करेंगे cortex की 3 layers को. Now, if I take a section of this cortex, I am going to get, this is the section of my cortex. This is a section of my cortex. So the most outside layer is the zona glomerulosa. Zona because zone, and then you have glomerulosa. Then the middle one is the biggest one. जैसे एक पेस्ट्री में होता है, ऊपर की टॉपिंग लेयर छोटी रहती है, नीचे की छोटी रहती है, बीच का ज्यादा रहता है. Okay, so this is the zona fasciculata. Zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis, the third one. Zona reticularis. And इसके नीचे medulla start हो जाएगा. You will have the medulla over here inside. So the layers from outer to inner, देखो, we have come from outer to inner because medulla कहाँ है? अंदर है. Okay, this is my medulla and this is my cortex. Adrenal cortex, adrenal medulla. Cortex की layers from outer to inner are GFR. Glomerular filtration rate से उसको याद रखेंगे, GFR. Glomerulosa, fasciculata, reticularis. Glomerulosa, fasciculata, reticularis. These are the 3 layers which will be having different types of cells. और ये तीनों का secretion अलग अलग रहेगा. Okay, these will be having different types of cells. So this is my zona glomerulosa. Then this is my zona fasciculata. All right, and then this is my zona reticularis. अब zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis, ये हो गया arrangement outer to inner MCQ. If you have to arrange these layers from inner to outer, I will have to go from here only because my inner is here. From inner to outer, अगर ऐसे जाना है तो हो जाएगा RFG. Fasciculata सेंटर में ही रहेगा. ओके, आउटर टू इनर आएंगे तो ग्लोमेरुलोसा बाहर, fasciculata मिडिल में, रेटिकुलरिस अंदर. इनर टू आउटर जाएंगे तो रेटिकुलरिस सबसे नीचे, then fasciculata, then glomerulosa. So anyways you can get to arrange these layers in your MCQs.
And you also have to remember that zona fasciculata is the largest one. This is the biggest one. ये लेयर सबसे बड़ी है, as you can see. See, कंपेयर करो, ये तीनों में से जोना फैसिकुलेटा सबसे बड़ा है, उसके बाद जोना ग्लोमेरुलोसा बड़ा है और जोना रेटिकुलरिस सबसे छोटा है. So zona fasciculata, which is the center one, is the biggest one. Zona glomerulosa is after that, and then zona reticularis is the smallest one. You have to remember about these layers. Now you tell me, adrenal gland किस हार्मोन का टारगेट है? कौन सा हार्मोन आके एड्रीनल ग्लैंड पे काम करेगा? Yes, tell me. It will be from the anterior pituitary. वो anterior pituitary हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है एंड उसको रेगुलेट कौन करता है? Alright, just think about it. Just think about it. I want you to write this. Adrenal gland किसका टारगेट ऑर्गन है? सोचो, कौन सा हार्मोन आता है एड्रीनल ग्लैंड के पास? वो हार्मोन क्यों आता है? कौन रेगुलेट करता है वो हार्मोन का सिक्रीशन जो आके टारगेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को? Just think about it. I want you to write this. So I'm sure you have written the hypothalamus. Okay, it is sending CRH. What is CRH? Corticotropin releasing hormone. Corticotropin releasing hormone, ये हमने देखा है in detail. Okay, this is going to come and stimulate the corticotrophs. Corticotropes in turn are going to secrete adrenocorticotropic hormone ACTH. इसको corticotropin भी बोलते हैं. We call it only corticotropin also. And then this corticotropin or the ACTH, it is going to work on the adrenal cortex. Adrenal gland इसका target होगा. And this adrenal cortex in turn is going to secrete corticoids. This adrenal cortex in turn is going to secrete corticoids. We have seen this, okay? Hypothalamus से anterior pituitary. These are parts of the anterior pituitary. Corticotrophs anterior pituitary में रहेगा. ACTH anterior pituitary secrete करेगा. That is the adenohypophysis. Hormones from the hypothalamus are reaching the anterior pituitary through hypophyseal portal system. ये हमने देखा है. Adrenal cortex stimulate होगा, corticoids release होंगे. So there are three types of corticoids which will be released. The three types are glucocorticoids, then you have the mineralocorticoids, and the sex corticoids. We've seen this when we have seen the general functions of the hypothalamus, which hormones it is regulating, and anterior pituitary is secreting which hormones, and anterior pituitary के जो hormones हैं उनके target organs क्या हैं, and in turn target organs क्या secrete करेंगे. We've seen all this, so just make a note of this chart. So now we will see about the adrenal cortex. I've divided the adrenal cortex into three parts like we have seen: the zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis में से सबसे बड़ा zona fasciculata है, उसके बाद zona glomerulosa, उसके बाद zona reticularis. Zona glomerulosa, it secretes mineralocorticoids. ये mainly mineralocorticoids secrete करता है, ये हमने देखा है. Zona fasciculata, it secretes glucocorticoids, and the zona reticularis, it secretes the sex corticoids, Alright, zona glomerulosa mineralocorticoids secrete करेगा, zona fasciculata glucocorticoids secrete करेगा, zona reticularis sex corticoids secrete करेगा. The main mineralocorticoid in our body is aldosterone. The main mineralocorticoid in our body is aldosterone. The main glucocorticoid in our body is cortisol.
हम इन सब के फंक्शंस देखेंगे अभी। एंड द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स आर द टेस्टोस्टेरोन एंड द ईस्ट्रोजन। ऑलराइट, सो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, दे आर द सेक्स हार्मोन, दैट इज द testosterone and estrogen. These are the main sex corticoids or the sex hormones which are secreted by the zona reticularis. Important MCQ, with which layer is secreting what from the adrenal cortex. चलो अब हमको ये भी देखना है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का वो फंक्शन क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या है और सेक्स का फंक्शन क्या है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, they are mainly concerned for maintaining the osmotic balance of the body. ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे, दैट मीन्स फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे, आयंस का और वाटर का बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। डू यू कोरिलेट द रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन? हमने एक्सक्रीशन में देखा है एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, जब कंडीशन रहेगी, ऑलराइट, तब एल्डोस्टेरॉन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए फ्लूइड, सोडियम और वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। वी हैव सीन दिस, ऑलराइट। Glucocorticoids are mainly concerned with carbohydrate metabolism. Glucocorticoids are mainly concerned with carbohydrate metabolism. बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, बॉडी में ग्लूकोज, ये कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वाइटल ऑर्गन्स तक हमेशा ग्लूकोज प्रेजेंट रहना चाहिए, पहुंचना चाहिए, सो दैट ब्रेन की फंक्शनिंग, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग, हमारी किडनी की फंक्शनिंग, ये कभी नहीं रुकनी चाहिए। ये मेनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड देन यू हैव द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स which are responsible for the secondary sexual characters in the males and the females after puberty. They are mainly responsible for the secondary development of secondary sexual characters in the males and females after puberty. Which are the secondary sexual characters which will be seen in both the males and the females after puberty? So one is, let me write it down over here. Appearance of pubic hair, then you have appearance of axial hair, hair in the armpit region, axial hair. You have appearance of hair in the pubic region, and you have appearance of facial hair. थोड़े facial hair, even the females will have scanty facial hair after puberty on their face. Alright, after puberty on their face. Ab MCQ, testosterone है तो male hormone, it is secreted by the testes. Estrogen है तो female hormone, it is secreted by the ovaries. Yes, it is principally secreted by those primary sex organs in the male and the female body. लेकिन एड्रीनल कॉर्टेक्स भी सिक्रीट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो कि है टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। पर एक मेल की बॉडी में बिकॉज टेस्टोस्टेरोन, देखो मेल बॉडी, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, प्लस और टेस्टोस्टेरोन है फ्रॉम द टेस्टिस। देखो मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन आया है एड्रीनल कॉर्टेक्स से, बिकॉज द मेल्स विल हैव द एड्रीनल ग्लैंड, तो टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन दोनों आए, बट और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन कहां से आया? टेस्टिस से। सो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन डोमिनेट करेगा। फीमेल्स में कौन डोमिनेट करेगा? देखो अभी फीमेल्स में, दिस साइन इज फॉर फीमेल, ऑलराइट। फीमेल्स में कॉर्टेक्स से टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन आया, बट ओवरी से ईस्ट्रोजन आएगा, तो ईस्ट्रोजन डोमिनेट करेगा।
ईस्ट्रोजन डोमिनेट करेगा फीमेल्स में, ऑलराइट। इसीलिए मेल और फीमेल दोनों में ये कॉमन कैरेक्टर्स तो दिखेंगे, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गमीट्स यानी कि स्पर्म। लिख लो ये, टेस्टोस्टेरॉन इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द मेल गमीट्स यानी कि स्पर्म एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल यानी कि फेशियल हेयर, ओके, बियर्ड, alright, aggressive nature, low pitch voice, all these are secondary sexual characters specific to male जो testosterone dominance की वजह से होते हैं। Then females में आ जाओ, females में high pitch voice, the voice is soft, the pitch is high, that is secondary sexual character, development of mammary glands, secondary sexual character which happens after the age of puberty in females because of estrogen। तो ये कुछ अलग अलग फीचर्स हैं, ओके। मेल्स में होर्सनेस ऑफ वॉइस, अग्रेसिव नेचर, लो पिच वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, एक्सेसिव फेशियल हेयर, ये टेस्टोस्टेरॉन के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। whereas फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, हाई पिच वॉइस, ऑलराइट, these are secondary sexual characters, they are more emotional, these are secondary sexual characters because of estrogen। तो ये दोनों अलग अलग होंगे, राइट। सो अब एमसीक्यू में फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन होता है क्या? होता है टेस्टोस्टेरॉन, बिकॉज टेस्टीज आर नॉट दी ओनली ऑर्गन्स विच आर प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरॉन। ध्यान दो यहाँ पे, टेस्टीज आर नॉट दी ओनली ऑर्गन्स विच आर प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरॉन। हमको एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, जोना रेटिकुलरिस से भी जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स मिलते हैं तो वो टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रहते हैं। तो ये बॉडी में रहेंगे फीमेल की बॉडी में, बट बिकॉज फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन और ज्यादा आ रहा है तो ईस्ट्रोजन का डोमिनेंस रहेगा। इसीलिए फीमेल की बॉडी में आपको फेशियल हेयर नहीं मिलेगा, एक्सेसिव फेशियल हेयर, बियर्ड, यू विल नॉट मुस्टैच, ऑल दीज, यू विल नॉट गेट होर्सनेस ऑफ वॉइस, ये सब नहीं मिलेगा। वेराज मेल्स की बॉडी में टेस्टीज और टेस्टोस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों है, बट टेस्टीज है मेल्स में तो टेस्टोस्टेरॉन और ज्यादा प्रोड्यूस होगा टेस्टीज से, तो टेस्टोस्टेरॉन का डोमिनेंस रहेगा। That is how masculine और feminine characters अलग अलग होके दिखते हैं। हम छोटे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये गर्ल है कि बॉय है, बट जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये गर्ल है कि बॉय है, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स, डोमिनेंस ऑफ ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स, दैट इज पॉसिबल। नाउ यू टेल मी, अगर एक फीमेल है जिसकी ओवरीज, मीनोपॉज आते आते ओवरीज डिसफंक्शन हो गई है और ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा है ज्यादा, तो ऐसी फीमेल्स में टेस्टोस्टेरॉन डोमिनेट करेगा। टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से आया उस फीमेल में? एड्रीनल कॉर्टेक्स से आया। जहां ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ डिसफंक्शन ऑफ द ओवरीज, बिकॉज ऑफ मीनोपॉज, ओके, ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया है, such females you will see they will have the appearance of excessive facial hair, they will have slight hoarseness in their voice। आप सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, your grandparents which are of an old age, आपकी दादी, alright, those females of those age, many of them, alright, they have appearance of those excessive facial hairs because estrogen अब थोड़ा कम हो गया है, इसीलिए टेस्टोस्टेरॉन डोमिनेट करता है, इसीलिए टेस्टोस्टेरॉन डोमिनेट करता है। नाउ देयर आर टू कंडीशंस, जब मेल में फेमिनाइन कैरेक्टर्स दिखते हैं और फीमेल में मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स दिखते हैं। अपीयरेंस ऑफ मोर फेमिनाइन कैरेक्टर्स इन मेल इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया। अपीयरेंस ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टर्स in males, whereas appearance of masculine characters in females is virilism. Virilism is masculine characters in the males, masculine characters in females. So you have to make a note of these terms. I have told you ऐसा क्यों होगा,
अपीयरेंस ऑफ मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स इन फीमेल्स क्यों होगा? बिकॉज टेस्टोस्टेरॉन डोमिनेट करेगा, ईस्ट्रोजन इतना नहीं बन रहा है। अपीयरेंस ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टर्स इन मेल्स क्यों होगा? बिकॉज ईस्ट्रोजन डोमिनेट करेगा, टेस्टोस्टेरॉन नहीं बन रहा है, टेस्टिस का डिस्फंक्शन है। So you have to remember these two terms. All this is what we have to learn about sex corticoids. They are going to release the testosterone and the estrogen. टेस्टोस्टेरॉन एक एंड्रोजन है, तो आपको यहाँ पे एंड्रोजन भी मिल सकता है आपकी बुक में। तो ये मेल और फीमेल में दोनों में टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ये सिक्रीट करेगा। ऑलराइट, बट कौन किस में कौन डोमिनेट करेगा? दिस इज बिकॉज दूसरा ऑर्गन मेल्स में जो टेस्टिस है वो और टेस्टोस्टेरॉन बनाएगा तो टेस्टोस्टेरॉन डोमिनेट करेगा, फीमेल्स में जो ओवरी है वो और ईस्ट्रोजन बनाएगी तो ईस्ट्रोजन डोमिनेट करेगा। This is all you need to know about the sex corticoids, their function, the gynecomastia and the virulism. Alright, now we will see about the mineralocorticoids. अब आपको रिलेट करो कि एल्डोस्टेरॉन कब सिक्रीट होता है। When is aldosterone secreted by the adrenal cortex? क्या सिग्नल जाता है, कौन से सेल्स सिग्नल देते हैं और एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कराते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट एंड try to recollect. If you have correlated, just make a chart with me. If you have correlated, do you remember जब blood volume कम हो जाता है, there is decrease in blood volume. Decrease in blood volume की वजह से blood pressure decrease हो जाएगा. Blood pressure decrease होगा, blood volume decrease होगा, तो blood coming to the kidneys decrease हो जाता है. ब्लड विच इज कमिंग टू द किडनीज पर मिनट डिक्रीज हो जाएगा, तो GFR डिक्रीज हो जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बिकॉज द ब्लड दैट इज कमिंग इज लेस, सो ग्लोमेरुलर फिल्टर जितना होगा वो लेस होगा। ऑलराइट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू स्टिम्युलेट द juxtaglomerular apparatus. This will stimulate the juxtaglomerular apparatus to do what? Juxtaglomerular apparatus is going to get stimulated because of this low GFR, low blood to the kidney, low blood pressure. और ये juxtaglomerular apparatus क्या secrete करेगा? You tell me what the juxtaglomerular apparatus? It is going to secrete renin. ये renin secrete करेगा, which is going to activate the angiotensinogen. एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, 1 से 2 में कन्वर्ट होगा लिवर में। वी हैव सीन ऑल दैट मैकेनिज्म एंड फाइनली एंजियोटेंसिनोजन 2 इज गोइंग टू कॉज द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। डू यू रिमेंबर दिस? ऑलराइट, जब बीपी कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड फ्लो टू द किडनीज कम होगा, GFR कम होगा, juxtaglomerular cells स्टिम्युलेट होंगे, रेनिन रिलीज होगा फ्रॉम द किडनीज, दैट इन टर्न इज गोइंग टू कॉज द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम and water from distal parts of renal tubule. Excretion chapter में पीछे जाके देखो, we had seen conditional reabsorption of sodium and water from the distal convoluted tubule. Condition कौन सी है? Low BP, low blood volume, low blood to the kidney, low GFR. तो aldosterone activate होगा। This aldosterone is going to help raise the BP. तो ये BP रेज कैसे करेगा? ये ज्यादा से ज्यादा सोडियम रीएब्सॉर्ब करेगा। मैंने आपको बताया था कि आप कोरिलेट करके देखो, हम लो बीपी वाले पेशेंट को क्या देते हैं? सोडियम देते हैं। मतलब बॉडी में जब बीपी कम हो गया है, वो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, तो हमको सोडियम बचाना है। हम सोडियम एक्सक्रीशन के लिए नहीं भेजेंगे, हम सोडियम रिटेन करेंगे। Alright, we are going to retain the sodium, we are going to maximum reabsorb sodium, reabsorb water. हम ये जाने नहीं देंगे because body fluids का volume कम है। Alright, we had seen this renin
angiotensin aldosterone system, which is helping to maintain the BP back, maintain the GFR back, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो ये मैक्सिमम सोडियम और वाटर रीएब्सॉर्ब करेगा। उसके जगह पे वो यूरिन में क्या भेजेगा? पोटेशियम और फॉस्फेट भेजेगा। जब हम सोडियम अंदर ले रहे हैं बॉडी में वापस, तो फिर से बैलेंस बनाने के लिए हमको दूसरा आयन बाहर भेजना पड़ेगा। सोडियम अंदर ले रही हूं तो पोटेशियम बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो सोडियम बॉडी में ले रहे हैं, उसकी जगह पे पोटेशियम यूरिन में देना पड़ेगा। सोडियम जब हम बॉडी में खींच रहे हैं तो पोटेशियम यूरिन में छोड़ना पड़ेगा। दिस इज व्हाट एल्डोस्टेरॉन इज गोइंग टू डू। तो एल्डोस्टेरॉन जब काम कर रहा है, जब उसको एक्शन मिला है यहाँ से, ओके, व्हेन रेनिन इज रिलीज, रेनिन कब रिलीज होगा? जब जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एपरेटस स्टिम्युलेट होगा। वो कब स्टिम्युलेट होगा? जब जीएफआर कम होगा, जब बीपी कम होगा, जब ब्लड फ्लो टू द किडनी कम होगा, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा। So can I say the stimulus for the release of aldosterone is low blood volume, low BP? ये stimulus है। ऐसे ही याद रखना है आपको हर हार्मोन, ये इसका स्टिम्युलस है। क्या है स्टिम्युलस? जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, बीपी कम होता है, जीएफआर कम होता है, तो एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट होता है। उसका एक्शन क्या है? वो सोडियम और वाटर का मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन करता है from the distal parts of the renal tubule, and its action is to increase the blood volume, increase the BP। ये उसका एक्शन हो गया एल्डोस्टेरॉन का। ये स्टिम्युलस है, तो उसने एक्शन क्या किया? इंक्रीज करके दिया ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज करके दिया बीपी। ऑलराइट, सोडियम जब एल्डोस्टेरॉन काम कर रहा है तो यूरिन में क्या जाएगा? व्हाट विल गो फ्रॉम ब्लड टू यूरिन और व्हाट विल गो फ्रॉम द बॉडी टू द यूरिन? यूरिन में जाएगा एक्सेसिव पोटेशियम, एंड वापस क्या आएगा बॉडी में? नेफ्रॉन में से, टिब्यूल में से वापस क्या आएगा बॉडी में? रीएब्सॉर्ब क्या होगा? सोडियम होगा। ऑल दीज आर एमसीक्यूज, इनको समझने की कोशिश करो। सोडियम बॉडी में ले रहे हैं तो सोडियम वापस आ रहा है, सोडियम कंटेंट को बढ़ाएगा बॉडी की एल्डोस्टेरॉन, पोटेशियम कंटेंट को कम करेगा। सोडियम कंटेंट को बढ़ाएगा, पोटेशियम कंटेंट को कम करेगा। सोडियम और वाटर का मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन करेगा, बॉडी फ्लूइड्स को बढ़ाएगा, बीपी को बढ़ाएगा, इन टर्न जीएफआर बढ़ेगा। नाउ विच वाज द हार्मोन विच वाज कीपिंग अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम? हमने ये किया है कि ये बीपी एक्सेसिवली नहीं बढ़ाते जाए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। उसके लिए एक हार्मोन था फ्रॉम द हार्ट विच वाज कीपिंग अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। दैट हार्मोन वाज द ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर फ्रॉम द हार्ट। ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, ये चेक रखता है, रेगुलेट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को, ताकि बीपी विद इन नॉर्मल लिमिट्स रहे और एक्सेसिवली नहीं बढ़ जाए। तो जब बीपी एक नॉर्मल लिमिट पे आ गया है, ब्लड वॉल्यूम बॉडी का रिस्टोर हो गया है, तो एल्डोस्टेरॉन बंद होना चाहिए, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम काम करना बंद होना चाहिए। ये चेक रखेगा atrial natriuretic factor from the heart, which is going to decrease the BP. So can I say कि aldosterone का antagonistic है atrial natriuretic factor? Yes, because this is going to increase the BP. Which is going to increase the BP? Aldosterone. ये उसका action है, ये उसका function है. And atrial natriuretic factor is going to decrease the BP. So both of these, aldosterone and ANF, they will be एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। इन दोनों का एक्शन एंटागोनिस्टिक है, एल्डोस्टेरॉन का एंटागोनिस्टिक है ANF। देखो आपको समझ रहा है क्या कि क्या चल रहा है? ऑलराइट, एल्डोस्टेरॉन कब स्टिम्युलेट हुआ? जब लो बीपी था, जब लो ब्लड प्रेशर था, जब लो ब्लड वॉल्यूम था, लो जीएफआर था। एल्डोस्टेरॉन ने क्या किया? सोडियम और वाटर को रिटेन किया सो दैट ब्लड वॉल्यूम बढ़े, बीपी बढ़े, जीएफआर बढ़े। बट ये एक्सेसिवली नहीं बढ़ना चाहिए, उस पर चेक रखेगा
atrial natriuretic factor, so that is an antagonistic to aldosterone. This is the action of mineralocorticoid, which is the aldosterone, the main mineralocorticoid in the body. Maintenance of ions and fluid balance in the body, electrolyte और water का balance बना के रखना है, in turn osmotic balance बना के रखना है. ये फंक्शन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का. तो जब एल्डोस्टेरॉन काम कर रहा है तब ब्लड में, जब एल्डोस्टेरॉन काम कर रहा है ब्लड में क्या ज्यादा रहेगा? जब एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो चुका है ब्लड में सोडियम ज्यादा रहेगा, पोटेशियम कम रहेगा, बिकॉज सोडियम को रीएब्सॉर्ब कर रहे हैं, पोटेशियम को यूरिन में छोड़ रहे हैं. ऑलराइट, जब एल्डोस्टेरॉन अच्छे से सिक्रीट हो गया है, काम कर रहा है, तो बॉडी के अंदर सोडियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हमने पोटेशियम को एक्सक्रीट किया है, सोडियम को रिटेन किया है बैलेंस बना के रखने के लिए. एक आयन अंदर लिया है तो एक को बाहर छोड़ना पड़ेगा. ऑलराइट, जब हाइपोसिक्रीशन होगा एल्डोस्टेरॉन का, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, बिफोर हाइपोसिक्रीशन आप ये भी देखो कि जब ब्लड में सोडियम इंक्रीज होगा, पोटेशियम डिक्रीज होगा. ओके, जब एल्डोस्टेरॉन काम कर रहा है. और यूरिन में क्या होगा? यूरिन में क्या होगा? यूरिन में सोडियम डिक्रीज होगा, पोटेशियम इंक्रीज होगा. देखो, आपको समझ रही हैं ये दोनों कंडीशन? यूरिन में सोडियम क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि हम मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर ले रहे हैं, बॉडी में रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको यूरिन में नहीं जाने दे रहे हैं, तो यूरिन में सोडियम डिक्रीज हो जाएगा. और हम पोटेशियम बाहर भेज रहे हैं तो यूरिन में पोटेशियम इंक्रीज होगा. वेराज ब्लड में सोडियम इंक्रीज होगा, पोटेशियम डिक्रीज होगा. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विथ द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन. ब्लड में किसका कंटेंट ज्यादा हो जाएगा और यूरिन में किसका कंटेंट ज्यादा हो जाएगा. ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड दीज एमसीक्यूज. देखो आपको समझ रहे हैं कि नहीं ये एमसीक्यूज. अब अगर एल्डोस्टेरॉन का हाइपोसिक्रीशन है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन मींस लेस सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन. ऐसे पेशेंट्स में बीपी ज्यादा रहेगा या बीपी कम रहेगा? बीपी कम रहेगा, बिकॉज अगर कम बीपी है और एल्डोस्टेरॉन नहीं सिक्रीट हो रहा है या कम सिक्रीट हो रहा है तो बीपी मेंटेन नहीं रहेगा, लो बीपी रहेगा. हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन में क्या होगा? बीपी इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा, because its function is to increase the body fluid volume, its function is to increase the BP, so BP increase hoga. Are you getting me? This is the way MCQs will come on this mineralocorticoid, that is aldosterone. You should understand the renin-angiotensin aldosterone system. ये क्यों चालू हुआ है? इसीलिए ये स्टिमुलस है, और इसका एक्शन क्या है और इसका फंक्शन क्या है. ऑलराइट, कौन इसको एंटागोनिस्टिक है? ब्लड में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, किसका कम होगा जब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम काम कर रहा है. जस्ट मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इन योर नोट्स. सब लिख के रखो आप अच्छे से. यू आंसर माय क्वेश्चन. अगर यूरिन में एक्सेसिव पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस मिल रहे हैं, अगर किसी पर्सन के यूरिन में एक्सेसिव पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस मिल रहे हैं, देन द नॉर्मल कंटेंट, दैट मीन्स मैक्सिमम सोडियम रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है. जब बॉडी को मैक्सिमम सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करना है, बॉडी को पोटेशियम और फॉस्फेट छोड़ना पड़ेगा यूरिन में. सो अगर किसी पेशेंट के यूरिन में ज्यादा पोटेशियम और फॉस्फेट मिल रहा है, इट गिव्स अस अ क्लू कि बॉडी व्हेन इट इज सेंडिंग पोटेशियम एंड फॉस्फेट आउटसाइड, तो उसकी जगह पे वो सोडियम को मैक्सिमम अंदर रिटेन कर रहा है. लिख लो ये पॉइंट आपके पास. जब बॉडी ज्यादा से ज्यादा सोडियम और वाटर रीएब्सॉर्ब कर रही है, ओके, अपने पास रख रही है, तो उसकी जगह पे इट इज गोइंग टू गिव आउट पोटेशियम एंड फॉस्फेट इन द यूरिन. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, टू मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम, टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, टू मेंटेन द GFR. ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के. नाउ वी हैव बीन स्पीकिंग करते हैं.
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? व्हाट डू वी मीन बाय कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? For understanding the exact carbohydrate metabolism of the glucocorticoids, I first want to discuss these terms with you. What is glycolysis? Any lysis, any term ending with lysis मतलब होगा breakdown. Lysis का मतलब होगा breakdown. All right? And genesis, genesis का मतलब होगा formation. मतलब कि anabolism. Do you know that the word metabolism, it can be broken down into anabolism plus catabolism? Anabolism will be the building up reaction. Catabolism will be the breaking down reaction. So any term ending with lysis will be breakdown, will be catabolism. Any term ending with genesis will be formation, will be anabolism. All right, what is glycolysis? The normal breakdown of glucose to produce energy, to produce ATP is glycolysis. You all know this very nicely. What is glycogenesis or glycogenolysis? Glycogenolysis ऐसा रीड करोगे तो आपको समझेगा कि ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन है. When is the body making glycogen? जब बॉडी में ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाता है. तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड इट इज स्टोर्ड. ये स्टोर्ड रहता है. ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी विच द बॉडी इज गोइंग टू यूज एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. जब नॉर्मल ग्लूकोज जितना चाहिए बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए उतना अवेलेबल नहीं है तो स्टोर से निकालो. सो बॉडी ग्लाइकोजन बना के रखती है एक्स्ट्रा ग्लूकोज से. वेयर? इन द लिवर. बॉडी इज गोइंग टू प्रोड्यूस द ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन इज ग्लाइकोजेनेसिस. इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस जिससे बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखती है. ऑलराइट, ये हम कब यूज करेंगे? तो ग्लाइकोजेनेसिस कब होगा, मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कब होगा? जब ब्लड में इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल है, एक्स्ट्रा है ना ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन में स्टोर करके रखो. स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो ब्लड से लिवर में भेजो. ऑलराइट, एंड वहां पे ग्लाइकोजन बनेगा. ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म रहेगा. अब ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस मींस ग्लाइकोजन का ब्रेकअप. ग्लाइकोजन लाइसिस ऐसा पढ़ो उसको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजन का लाइसिस मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. अब ये ग्लाइकोजन को वापस ब्रेक करना है. दिस इज, ये फॉर्मेशन था. दिस विल बी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन. ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहे हैं वापस. कब यूज करेंगे ग्लाइकोजन, कब ब्रेक डाउन करेंगे वापस ग्लाइकोजन का यूज करने के लिए? जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएगी. सो डिक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल पे बॉडी ग्लाइकोजन यूज करेगी. हमारे पास है ना ग्लाइकोजन. सिंपल एग्जांपल देती हूँ. इफ आई एम मेकिंग टी एट होम, ओके, तो जो मेरे छोटे छोटे कंटेनर्स हैं जिसमें हम चाय पत्ती और शक्कर रखते हैं हमारे एरिया में, वर्किंग एरिया में, अगर वो छोटे डब्बे में शक्कर खत्म हो गई है तो मैं शक्कर कहाँ से लाऊंगी? मैंने जहां बड़े डब्बे में स्टोर करके रखी है अपने कंपार्टमेंट में, ओके, अपने कैबिनेट में, वहां से मैं फिर से वो छोटा डब्बा रिफिल करके लेके आऊंगी. तो मैं मेरे स्टोर हाउस से लेके आई. मुझे स्टोर हाउस पे जाने की जरूरत कब पड़ी? जब मेरे पास जो था वो खत्म हो गया है. जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो गया है तब स्टोर हाउस में से निकाल के ब्लड में ग्लूकोज आएगा, बॉडी लाएगी तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगी. ये ग्लाइकोजन बनाया भी बॉडी नहीं था, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करके रखा था. मींस मार्केट से जब मैं बहुत सारी शक्कर ला रही हूँ, थोड़ा सा निकाल के रखती हूँ, बाकी स्टोर करके रख देती हूँ. जितना मुझे उस समय लगता है वो कंटेनर जितना फिल हो सकता है उतना निकाल लेती हूँ, बाकी स्टोर रूम में जाता है. तो वो ग्लाइकोजन स्टोर रूम से जो निकलेगा वो ग्लाइकोजन है. कब निकलेगा? जब मेरे पास जो है वो खत्म हो जाएगा. समझ में आ रहा है?
सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये कब वापस हम ब्रेक डाउन करेंगे ग्लाइकोजन को, जो हमने बना के रखा था, जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो हम स्टोर रूम से लेके आएंगे शक्कर, ताकि ब्लड में शक्कर आ जाए वापस, ओके, ब्लड में शुगर आ जाए वापस। दिस इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, इट इज ब्रेक डाउन, इट इज लाइसिस। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टर्म इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस से आपको ये तो समझ रहा है इट इज फॉर्मेशन, जेनेसिस से आपको ये समझ रहा है कि इट इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है बिकॉज ग्लूको है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है बिकॉज ग्लूको इज देयर। ऑलराइट, जेनेसिस इज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम व्हाट? नियो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, formation of glucose from non carbohydrate source, यानी कि हमारे अमाइनो एसिड्स, हमारे लिपिड्स, हमारे प्रोटीन्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से आप ग्लूकोज बना रहे हो बिकॉज ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया है, रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल है, ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया है। हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कब करेंगे? जब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया है। अब उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूं, मैं मेरे स्टोर हाउस में गई शक्कर देखने, वहां पे भी शक्कर खत्म हो गई, अब शक्कर नहीं है, तो मैं चाय में क्या डालूंगी सो दैट चाय मीठी हो? आई विल फाइंड आउट फॉर अदर सोर्सेज, तो मैं गुड़ ढूंढूंगी, जैगरी जो गुड़ होता है ना, वो भी चाय को मीठा करती है। आई विल फाइंड आउट फॉर सम अदर सोर्स जिससे मेरी चाय मीठी हो सके। ऑलराइट, आई विल फाइंड आउट फॉर सम अदर सोर्स जिससे मेरी चाय मीठी हो सके। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कब होगा? जब रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल है। तभी तो जरूरत पड़ेगी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अमाइनो एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके उनमें से ग्लूकोज बनाने की। दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। So I want you to understand these processes: glycolysis, glycogenesis, glycogenolysis and gluconeogenesis. ये चारों टर्म्स आपको अच्छे से समझे हुए होने चाहिए। हम ग्लाइकोजन कब बनाएंगे? जब बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर है, ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर है, तो वो लिवर के पास चला जाएगा, लिवर में हेपाटोसाइट सेल्स में ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो जाएगा। हम ये ग्लाइकोजन कब ब्रेक डाउन करेंगे, कब उसको यूटिलाइज करेंगे? जब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, ब्लड शुगर लेवल और कम हो गया है और ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे? बिकॉज ग्लूकोज इज असेंशियल हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए, मेरे हार्ट के लिए, मेरे ब्रेन के लिए, मेरी किडनीज के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज जरूरी है। तो हम क्या करेंगे? अमाइनो एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन सबको, फैट्स, इन सबको हम ब्रेक डाउन करके इनसे ग्लूकोज बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये कब होगा? जब एक्सट्रीम ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, तभी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करने की जरूरत आएगी। ऑलराइट, पेशेंट अगर स्टारवेशन पे है, ऐसे सोच के देखो, अभी एक पेशेंट ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, बॉडी का ग्लूकोज यूज हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन है, ओके, नॉर्मल। अब पेशेंट ने 10 दिन से कुछ नहीं खाया है, कार्बोहाइड्रेट अंदर नहीं गया है 10 दिन से, तो बॉडी ग्लाइकोजन यूज करेगी, जो हमारा स्टोर था, जो हमने पहले खाया हुआ था, वो जाके जो स्टोर किया हुआ था वो यूज अप होगा। एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप और 50 डेज नहीं खा रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया है, तब बॉडी क्या करेगी? फैट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को यूज करो और ग्लूकोज बनाओ। दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ऐसा इंसान पतला होता जाएगा। आप खाना मत खाओ 50 डेज के लिए, यू सी बॉडी वेट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि फैट्स पूरे लग गए ग्लूकोज बनाने में। मसल्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स में जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करके लगा दिया है बॉडी ने ग्लूकोज बनाने में। ऑल दिस वर्क of maintenance of the sugar level, this work is being done by the glucocorticoids, mainly the cortisol. अब क्यों कर रहा है कॉर्टिसोल ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम? बिकॉज जो मेरे वाइटल ऑर्गन्स हैं, मेरा हार्ट अगर बंद हो गया तो मेरी लाइफ चली जाएगी, ओके? मेरे वाइटल ऑर्गन्स, मेरा हार्ट, मेरा ब्रेन, मेरी किडनी, इनका फंक्शनिंग नहीं रुकना चाहिए, इन तक ग्लूकोज हमेशा पहुंचना चाहिए अगर लाइफ चलानी है तो। मसल वीक हो गए, मसल फटीग हो गया, बोन वीक हो गए, वो सब चलेगा,
बट हार्ट काम करना बंद नहीं करना चाहिए, ब्रेन के पास ग्लूकोज जाना चाहिए, नहीं तो सारी बॉडी की एक्टिविटीज ही नहीं होगी, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ही नहीं होगी, पेशेंट विल डाई. So glucocorticoids, they are also called life-saving hormones. Okay, life-saving hormones. ये लाइफ को बचा के रखते हैं, वाइटल ऑर्गन्स को ग्लूकोज देते रहेंगे. जो अननेसेसरी फंक्शंस हैं रिप्रोडक्शन के, दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनको ग्लूकोज नहीं गया चलेगा, बट वाइटल ऑर्गन्स के पास ग्लूकोज जाना चाहिए. ऑलराइट, और इसीलिए ये दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोज बनाएंगे जब ग्लाइकोजन और ओरिजिनल ग्लूकोज खत्म हो गया है बॉडी में. So it is going to do the work of carbohydrate metabolism. It is going to increase gluconeogenesis. Now you understand what is gluconeogenesis. Formation of glucose from non-carbohydrate source. ऐसा करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब ब्लड शुगर लेवल कम होगा. तभी तो हमको नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के पास जाना पड़ेगा जब हम पूरा ग्लाइकोजन भी खत्म कर चुके हैं. राइट, ओरिजिनल ग्लूकोज तो खत्म कर चुके हैं, ग्लाइकोजन खत्म कर चुके हैं, अब बॉडी में और कोई शुगर सोर्स नहीं है, तो हम अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके उनसे ग्लाइकोजन, उनसे ग्लूकोज बनाएंगे, उससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेंगे. दैट मीन्स मुझे लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना है तो इंक्रीज लिपोलाइसिस. देखो, लाइसिस इज ब्रेक डाउन. मैं लिपिड्स को ब्रेक डाउन करूंगी ताकि उससे ग्लूकोज बन सके. प्रोटियोलाइसिस, मैं प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करूंगी ताकि उससे ग्लूकोज बन सके. All this work, glucocorticoid, that is cortisol, is going to do. It is going to increase lipolysis. It is going to increase proteolysis so that blood sugar level is there for the maintenance of cardiovascular system, maintenance of kidney, maintenance of brain. ये organs काम करने बंद हो गए तो the person will die. These organs should be supplied with adequate glucose. तो ये काम करेगा कॉर्टिसोल, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन. मसल वीकनेस, बिकॉज मसल्स का प्रोटीन मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया है तो मसल्स वीक हो जाएंगे. मसल्स का प्रोटीन पूरा ब्रेक डाउन कर दिया है. ब्रेक डाउन मीन्स कैटाबॉलिज्म, लाइसिस मीन्स कैटाबॉलिज्म. सो देयर इज गोइंग टू बी मसल वीकनेस, देयर इज गोइंग टू बी मसल फटीग. ये आप एक्सपीरियंस करके देखो. इफ यू आर फास्टिंग फॉर 3 days, आप एक्सपीरियंस करके देखो, आपको मसल वीकनेस लगती है, मसल फटीग लगता है, यू आर नॉट दैट मच एक्टिव. अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, रोज खाना खा रहे हो, ऑल द टाइम यू आर हैविंग योर मील्स, यू आर मोर एक्टिव. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू डू. इसके साथ साथ इट विल इनहिबिट मीन्स कम करेगा सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. दूसरे जो हमारे पेरिफेरल सेल्स हैं बॉडी को, उनको बोलेगा अमाइनो एसिड्स मत यूटिलाइज करो, अमाइनो एसिड्स मत यूटिलाइज करो, बिकॉज आई नीड देम टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. It's going to inhibit the cellular uptake of and utilization of amino acids. Even जो पेरिफेरल सेल्स हैं, उनका ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन भी कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा, उनको ग्लूकोज नहीं यूज करने देगा, बिकॉज इट नीड्स ग्लूकोज फॉर द वाइटल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ये पूरा काम करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, विच इज द कॉर्टिसोल, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यू शुड अंडरस्टैंड दीज टर्म्स: ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ये सारे टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए. एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. जस्ट मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज एंड सी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. You should be able to understand these terms. Okay, along with these functions, glucocorticoid immune system एंटी-इन्फ्लेमेटरी है. पहले एंटी-इन्फ्लेमेटरी फंक्शन लिख लेते हैं. एंटी-इन्फ्लेमेटरी है, ये इन्फ्लेमेशन होने नहीं देगा, आई एम पुटिंग अ क्रॉस. अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो अर्ली हीलिंग, गुड हीलिंग हो जाएगी, अर्ली रेजोल्यूशन हो जाएगा इन्फेक्शन का. इट इज एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग. इट विल नॉट लेट इन्फेक्शन हैपन इन द बॉडी. हो गई तो ये जल्दी से उसको रिजॉल्व कर देगा, जल्दी से हील कर देगा. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स फंक्शन. And the next one is it suppresses the immune system.
इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है बिकॉज ये पूरा ध्यान लगा रहा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। इम्यून सिस्टम को भी वो एनर्जी नहीं देगा, ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं करने देगा, सप्रेस कर देगा उसकी एक्टिविटी को फॉर द टाइम बीइंग, जब तक बाहर से कार्बोहाइड्रेट आएगा नहीं। इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोसप्रेसेंट हार्मोन। इम्यूनोसप्रेसेंट, कॉर्टिकोसोल इज इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को। सो इट इज गिवन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी में देते हैं। वाई इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट? क्योंकि जब मैं किडनी ट्रांसप्लांट कर रही हूँ किसी पेशेंट में, दैट न्यू किडनी इज अ फॉरेन बॉडी फॉर दैट पेशेंट्स बॉडी। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, दैट फॉरेन बॉडी विल बी रिजेक्टेड इमीडिएटली। I don't want that new kidney to be rejected immediately. I want that the immune system of the body be suppressed for some days so that वो new kidney settle हो जाए, new kidney settle हो जाए। At this time I can give immunosuppressant, I can give cortisol to suppress the immune system. Okay? साइक्लोस्पोरिन एक ड्रग था जो हमने एक्सक्रीशन में देखा है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे देते हैं, वो भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इट इज इम्यूनोसप्रेसेंट, immunosuppressing agent. Along with all this, it also increases the RBC production. I'm writing over here. It increases RBC production. It increases the RBC production. Okay. So at the times of stress, जब बॉडी किसी स्ट्रेस में आ जाएगी, okay, हमको immediately बहुत सारा ग्लूकोज चाहिए, बहुत ज्यादा glucose चाहिए for the normal functioning of the heart and the brain and the kidney. So cortisol is going to provide it. It is also called stress hormone. ये स्ट्रेस में काम करेगा, स्ट्रेस में ब्रेन की हार्ट की एक्टिविटी मेंटेन रखेगा। ऑलराइट, सो बिकॉज ये ब्लड की शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? ये सब प्रोसेसेस वो करके क्या करेगा? मैं जब ग्लाइकोजन को ब्रेक करूंगी तो क्या होगा? ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगी। जब मैं ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से बनाऊंगी तो क्या होगा? ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगी। इट इज इंक्रीजिंग द ब्लड शुगर लेवल। दिस cortisol, it is increasing the blood sugar level. See if you are getting me. देखो स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस क्या है ग्लाइकोजेनेसिस को? स्टिमुलस क्या है ग्लाइकोजेनेसिस को नहीं, स्टिमुलस क्या है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और ग्लूकोनियोजेनेसिस को? डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। इन योर टेक्स्ट बुक डायरेक्टली ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट करता है ये दिया हुआ है, बट ग्लूकोनियोजेनेसिस करने की जरूरत कब आएगी? जब ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया है। दैट मीन्स डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल है। तो स्टिमुलस इज डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल एंड द कॉर्टिसोल इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ब्लड शुगर को इंक्रीज करेगा। अब ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज रहती है उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। हेंस दिस इज आल्सो कॉल्ड डायबेटोजेनिक हार्मोन। डायबेटोजेनिक हार्मोन, बिकॉज द कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल इज इंक्रीज्ड इज कॉल्ड डायबिटीज। So diabetogenic hormone. It is also called life-saving hormone. All right. So all these are the functions of glucocorticoids जो बहुत important हैं. Just make a note of all these functions of the glucocorticoids. Okay. In the next lecture, I will conduct for normal functioning में करेगा glucocorticoid. So what will happen when there is hyposecretion of the hormones of the adrenal cortex? That is the glucocorticoids, mineralocorticoids and sex corticoids. जब इनका hyposecretion होगा तो क्या होगा और जब इनका hypersecretion होगा तो क्या होगा? We will continue from this part in the next lecture and we will also see the hormones of the adrenal medulla, adrenal medullary hormones. All right. So just complete this much part till today. चलो, so now let us see. In this way, I am continuing normal conditions में क्या क्या function रहता है glucocorticoids का, this we had seen. I will continue what will happen if there is underproduction and there is
excess of hormones released from the adrenal cortex. Now first you tell me कि adrenal cortex किसके सिग्नल पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये सब रिलीज करता है? ACTH के सिग्नल पे. Who is releasing ACTH? The anterior pituitary. Who is releasing ACTH? Anterior pituitary. Anterior pituitary के सिग्नल पे ACTH आता है. If ACTH is hyposecreted, okay, ACTH कम secrete हुआ, ACTH properly adrenal cortex पे नहीं आया अपने target organ पे, there will be underproduction of the hormones of the adrenal cortex, that are the glucocorticoids and mineralocorticoids mainly, and some action on the sex corticoids. अगर ACTH ज्यादा आया adrenal cortex पे, so there will be hypersecretion of the hormones of the adrenal cortex. So this hyposecretion of the adrenal cortex hormones, it is called Addison's disease. Hyposecretion of ACTH is called Addison's disease. Hyposecretion of ACTH, which is going to work on the adrenal cortex. So hyposecretion होगा glucocorticoids का, mineralocorticoids का mainly, okay? And excessive secretion, it is called Cushing's syndrome. Excessive secretion is called Cushing's syndrome. So you have to remember, hyposecretion of ACTH, adrenocorticotropic hormone, from the anterior pituitary will lead to hyposecretion of the hormones from adrenal cortex, which is called Addison's disease. Hypersecretion of ACTH from the anterior pituitary will stimulate the secretions of the adrenal cortex, that is the glucocorticoids and mineralocorticoids, and is called Cushing's syndrome. अब hyposecretion में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं चलेगा. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो ये मेंटेन कर रहा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दैट विल नॉट बी रेगुलेटेड. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगा. इट विल गोइंग टू अल्टर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और इट विल नॉट बी रेगुलेटेड. ये सब प्रोसेसेस रेगुलेट नहीं होंगे. ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल कम है तो वो कम ही रहेगा. इट विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट ग्लूकोज टू द वाइटल फंक्शंस, वाइटल ऑर्गन्स. तो वाइटल ऑर्गन्स मेंटेन्ड नहीं रहेंगे. वाइटल ऑर्गन्स की एक्टिविटी मेंटेन्ड या रेगुलेटेड नहीं रहेगी. नॉट मेंटेन्ड. ऑलराइट, there will be muscular weakness and fatigue. The person will not be that much alert. Muscular weakness रहेगा, fatigue रहेगा. अब एल्डोस्टेरॉन से रिलेट करो. ये तो मैंने कॉर्टिसोल के लिख लिए हैं. ओके, एल्डोस्टेरॉन में क्या होगा? हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन में क्या हो रहा था? लो बीपी, low blood volume, osmotic pressure is not osmotic balance not maintained. Osmotic balance not maintained. Are you getting me? Electrolyte balance maintain नहीं होगा, osmotic balance maintain नहीं होगा, BP fall होगा, because blood pressure, blood volume को increase कर रहा था aldosterone. There will be imbalance of electrolytes. Osmotic balance not maintained means electrolyte और fluid का balance maintain नहीं रहेगा, imbalance रहेगा. Alright, so all these are the points you should write with underproduction of the adrenal cortex hormones, which are under the influence of ACTH. और एक चीज, जब मैंने एल्डोस्टेरॉन के साथ ये पॉइंट बोला नहीं, जब सोडियम हम रिटेन करते हैं, ओके, जब हम मैक्सिमम सोडियम रिटेन करते हैं और पोटेशियम यूरिन में भेजते हैं, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन में क्या होगा? पोटेशियम बढ़ेगा ब्लड में. ब्लड में पोटेशियम बढ़ेगा. दिस वी हैव सीन, वी हैड रिटन आल्सो. इन ब्लड द पोटेशियम लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज. हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन में. So what will happen? This will lead to acidic condition of blood.
एसिडोसिस बोलेंगे जिसको, एसिडिक कंडीशन ऑफ ब्लड. So all this is going to happen in hyposecretion, that is also called Addison's disease after its discoverer. अब उल्टा कर लो कुशिंग सिंड्रोम में, उल्टा कर लो. I want you to write down the features. Exactly reverse लिखो कुशिंग सिंड्रोम में क्या क्या होगा. चलो, let us write down. Increased gluconeogenesis. That means increased blood sugar level. Increased proteolysis, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. And lipolysis. Increased uptake and utilization. Increased uptake and utilization. नहीं, ये इनिबिट कर रहा था, हाइपर सिक्रीशन में भी बहुत ज्यादा रिड्यूस करेगा, बहुत ज्यादा इनिबिट करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय द पेरिफेरल सेल्स. ओके, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी ब्रेन की, किडनी की, सीवीएस की. दे विल बी सप्लाइड विथ अ लॉट ऑफ ग्लूकोज. तो ये सब होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज होगा, इंक्रीज बीपी होगा, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस होगा, इंक्रीज लिपोलाइसिस होगा. ऑलराइट, अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा सिक्रीट हो गए फीमेल्स में, ओके, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन से ज्यादा अगर टेस्टोस्टेरॉन हो गया, आ गया यहाँ से एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स दिखेंगे फीमेल्स में. फीमेल्स विल शो मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स. And reverse, males will show feminine characters. Males will show feminine characters. Hyposecretion में कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन नहीं गया है एड्रिनल कॉर्टेक्स से. So the testes are going to produce testosterone in males, ovaries are going to produce estrogen in females. But hypersecretion में it is going to matter. This is called Cushing's syndrome, where there is increased blood sugar level, there is increased BP. Yes, aldosterone अगर बढ़ जाएगा, aldosterone बढ़ जाएगा तो increased BP रहेगा. Alright, sodium and water level बढ़ जाएगा, blood volume बढ़ जाएगा, whereas यहाँ पे decrease रहेगा. यहाँ पे आप decreased blood sugar level भी लिखो. This is the simplest way to remember. Normal क्या है और hypo में क्या होगा और hyper में क्या होगा. That is underproduction and excessive production. And we know that the hormones of the adrenal cortex are under the influence of ACTH, which is from the anterior pituitary. ACTH is under the influence of hypothalamus. Alright, so this is Addison's disease, the hyposecretion of the adrenal cortex hormones. This is Cushing's syndrome, the excessive secretion of the adrenal cortex hormones. So all this is about the adrenal cortex hormones. Now next we are going to see the hormones secreted by the adrenal medulla.